हम ये समझ लें कि कोनिक सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें मेनली हम सर्किल, हाइपर पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, चार फिगर पढ़ते हैं। अब ये चारों फिगर क्रिएट कैसे होती है, जनरेट कैसे होती है, हमको ये बेसिक समझ होनी चाहिए कि ये चीजें बनती कैसे है। सर्किल हम सबने जानते हैं, देखा है। पैराबोला का आइडिया आपको नहीं है, पैराबोला कैसे बनेगा, इलिप्स कैसे बनता है और हाइपरबोला कैसे बनता है, ये हमको समझना है। तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको, जिससे आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा इसका। दिखाई दे रहा है कुछ स्क्रीन पर? वीडियो दिख रही है आपको? ओके, आवाज क्लियर हो तो बताना मुझे, कोई दिक्कत कहीं सुनाई देने में आ रही हो तो। Now we are going to use a double cone to visualize cone sections. To do this, we are going to cut our double cone. At different angles. On the first angle, we are going to take a very flat plane which is at an angle of 0 degrees. When we cut our cone using this, we get a circular shape. As you can imagine very well, that we are going to have a circle at every level, at every layer in the cone. Now I have increased the angle of my plane a little. Now, when I cut my cone at this angle, my circular shape does not remain anymore and it has stretched out a bit to create an ellipse. Now, in the third situation, I am going to increase the angle of my plane further, and I have reached at an angle such that this plane is now parallel to my cone. At this angle, when we cut the cone, the new shape that we are now getting is called a parabola. Now, in the fourth situation, I have increased the angle even further. Now, in this situation, when I cut my double cone, you can see that both my cones are now giving me two independent shapes, and both of these together are called a hyperbola. So what we saw here was we can get 4 different shapes by the same double cone when we cut it at 4 different angles. And that is why all these 4 shapes are collectively called the conic sections. Now, we are going to observe a very interesting property of conic sections. According to this property, if light is thrown at a spherical object from different angles, we will get different conic sections as a shadow. Now, we are going to look at the same thing in an experiment. For this experiment, I am going to need a ball and a torch so that I can throw the light on the ball. Now, so that I can see the shadows clearly, I am going to dim the lights. Now, the first position, I am going to place the torch above the ball. Now, since the torch is placed exactly above the ball, the shadow I'm going to get is going to be circular in shape. So, the first conic section that I'm getting is a circle. Now, I'm going to tilt the torch a little, and when I start tilting the torch, the shadow becomes a little elongated, and now it has taken a new shape. This shape will be called an ellipse. Now I have tilted the torch further and I have reached a particular point such that the height of my ball is at the same level as my torch. Now at this point, the shape I'm getting is like a U shape, and this shape is called a parabola. Now when I further lower my torch, the shape of the parabola becomes sharper, and the shape that I'm now getting will be called a hyperbola. So you saw that when I changed the position of my torch, I was getting 4 different conic sections for different positions of the torch. You can also try this experiment at home. Till now, we have seen the shapes of the different conics that we have. But as we are studying coordinate geometry, we need to also know their equations. Now here,
I have written a Euler equation which collectively represents एक वीडियो क्लियर हो जाएगा। Create standout video. Students, बात करते हैं conic sections. Class 11th NCERT mathematics का 11th sir. And this is the part of coordinate geometry. है ना? In the coordinate geometry, what we have studied earlier, straight lines. And in this conic section, शेप दिखेगा कुछ ऐसा, राइट? तो इस शेप के अंदर क्या है? इस शेप के अंदर दो बर्थडे कैप्स है। जो ऊपर वाला है वो यू है और नीचे वाला है वो यू उल्टे स्टाइल में है, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ डबल नैप राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ये नाम कहां से आया? ये जो आप ऊपर का ये हिस्सा देख रहे हैं इसे हम कहते हैं नैप। तो ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं अपर नैप, नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं लोअर नैप। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डबल नैप राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अच्छा, इस शेप को पाने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम रोटेशन की बात कर रहे थे, तो ये जो हम रोटेशन की बात कर रहे थे, इस रोटेशन में ये जो एंगल अल्फा था इसका थ्रू आउट रोटेशन सेम रहना जरूरी है। भाई पता चला एंगल अल्फा से स्टार्ट किया, रोटेट करते टाइम ऐसे यूं 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 घूम गए, अब आपको ये शेप नहीं मिलेगा। ये शेप आपको तभी मिलेगा जब आप इसको एग्जैक्टली एंगल अल्फा पे रख के ही बस यूं रोटेट करते रहो। ठीक है, बनता है हमारा डबल नैप सर्कुलर कोन। अब अगला सवाल कि ये इस डबल नैप राइट सर्कुलर कोन से हमें इतने कोनिक सेक्शंस कैसे मिलते हैं, देखेंगे उसको भी, बट उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होते हैं। सबसे पहला, ये जो एक्सिस था जो बीच में बिल्कुल अडिग खड़ा था, जिसके अराउंड सारी रोटेशन हुई थी, इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक है, ये वाली जो लाइन थी जो यूं 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 रोटेट कर रही थी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जनरेटर। ये कहां से आ गया जनरेटर? वेल, इसे आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि इसके रोटेशन की वजह से ही ये शेप जनरेट हो रहा है, तो इसलिए आप इसे जनरेटर कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो अपर नैप और लोअर नैप है, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये दोनों ज्वाइंट है, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए क्योंकि हम उन्हें यूज करते रहेंगे बहुत फ्रीक्वेंट। यहां तक क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई अब इस कोन से हमें इतने अलग अलग शेप्स कहां से मिल रहे हैं? तो पहले ये जानते हैं कि हम कौन से शेप्स की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 4 कोनिक सेक्शंस की बात करेंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चारों तो ये अलग अलग शेप्स कैसे आएंगे? तो बेसिकली ये जो कोनिक सेक्शंस हैं ये जनरेट तब होते हैं जब इस कोन को एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है। समझ आया? नहीं आया? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये मेरा डबल नैप राइट सर्कुलर कोन है। एग्जैक्टली ये है तो नहीं, बट ये बेसिकली सैंड ग्लास है जो कुछ कुछ उस शेप का है। एग्जैक्टली उस शेप का नहीं है, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ। तो मान लो ये कुछ उस तरह का शेप का है, ठीक है। और मान लो एक प्लेन है। प्लेन के लिए आप इमेजिन कर सकते हो एक वन पीस ऑफ पेपर। प्लेन क्या होता है? वो 2 डायमेंशनल होता है। जो पेपर है उसकी भी हाइट बहुत नेग्लिजिबल होती है, तो वी कैन कंसीडर इट 2 डायमेंशनल। तो मान लो ये जो मेरा कोन है
इस कोण को अगर एक प्लेन आए और यूं इंटरसेक्ट करते, यूं काट दे, तो हमें जो सेक्शन मिलेगा उसे हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। समझ आया? इसे मैं रिलेट करा सकती हूँ, जब आप मे बी बायो के प्रैक्टिकल वगैरह के लिए जाते थे तो कई बार होता था ना, क्रॉस सेक्शन निकालो किसी चीज का। क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं साइंस के प्रैक्टिकल वगैरह करने के टाइम पे? कोई भी सामान दिया है उसे काटो, काटने के बाद जो सरफेस मिलता है ना, दैट्स द क्रॉस सेक्शन, राइट? ठीक उसी तरीके से इसको समझने के लिए ऐसे इमेजिन करो कि ये मेरा कोन है, कोन को अगर एक पीस ऑफ पेपर ने यूं काट दिया तो जो शेप मुझे मिलेगा वहां पे, दैट इज द कोनिक सेक्शन। अब सोचने वाली बात यह है कि यही मेरा कोन है और हमेशा उसको एक प्लेन ही इंटरसेक्ट करेगा, तो इतनी वैरायटी के अलग अलग शेप्स कैसे जनरेट होंगे? तो कौन सा वाला कर्व हमें मिलेगा ये डिपेंड करता है कि ये जो प्लेन है ये इस कोन को किस एंगल में इंटरसेक्ट करती है, इसका ओरिएंटेशन क्या है। ये इसे यू इंटरसेक्ट करती है, इसे यू इंटरसेक्ट करती है, यू इंटरसेक्ट करती है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का कोनिक सेक्शन मिलेगा। क्लियर है यहां तक? तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होगा अगर इस कोन को एक प्लेन इंटरसेक्ट करे एट 90 डिग्री। एक और जरूरी बात कि ये जो एंगल है ये हमेशा हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द कोन। एक्सिस कैसा है? वर्टिकल, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा जो प्लेन है वो इसे इंटरसेक्ट करता है एट 90 डिग्री, यानी कि वो यूं जा रहा है और एक्सिस ऐसे है, तो दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री है। अब इमेजिन करो, बिल्कुल अच्छे से इमेजिन करो, वैसे बगल में आपको दिख भी रही है पिक्चर, जिससे बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्लेन इसे यूं काटती हुई चली गई, तो जब काटती हुई चली गई तो क्या सरफेस बना? सर्कल, एग्जैक्टली। तो इस तरह से बनता है सर्कल। तो सर्कल हमें कब मिलता है? जब एंगल जो है दैट द प्लेन मेक्स विद द एक्सिस ऑफ द कोन इज 90 डिग्री। इस एंगल को हम डिनोट करते हैं बीटा से, क्योंकि बार बार ये बोलना पड़ता है ना ये कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो इस एंगल को हम डिनोट करेंगे बीटा से। तो यहाँ पे दो एंगल्स इंपॉर्टेंट है, एक तो है अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल है? जो ये जनरेटर बनाता है, ये कोन के शेप को लाने के लिए जो जनरेटर का जो रोटेट करने का एंगल था, दैट इज अल्फा। तो अल्फा को भी हम मेजर तो करते हैं एक्सिस के रिस्पेक्ट में, राइट? और बीटा क्या है? ये जो बाहर वाला जो प्लेन है जो आके इसे इंटरसेक्ट कर देता है, वो प्लेन एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज बीटा। ठीक है, तो पहला केस हमने देख लिया कि भाई जब 90 डिग्री में ये इंटरसेक्ट करता है तो हमें मिलता है सर्कल। अब बात करेंगे दूसरे केस में। मान लेते हैं कि ये तो मेरा कोन है ही, ये इसका एक्सिस कुछ यूं होगा, वर्टिकल एक्सिस। अब जो प्लेन पहले इंटरसेक्ट कर रहा था 90 डिग्री पे, उसने सोचा नहीं, 90 डिग्री से कम एंगल बना के इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये कुछ यूं इंटरसेक्ट करेगा इसे। अब क्या होगा देखते हैं। मान लो ये है आपका कोन, इसे अगर प्लेन ऑफ पेपर यूं इंटरसेक्ट करेगा, यूं, तो क्या होगा? सर्कल तो नहीं मिलेगा एग्जैक्टली, लेकिन क्या मिलेगा? एक ओवल टाइप का सर्कल मिलेगा, राइट? जब इसे यूं काट जाएंगे, वो ओवल टाइप का सर्कल क्या है? उसे हम कहते हैं एलिप्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टाइम पे जो बीटा है इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री, बट इट शुड बी ग्रेटर देन अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा के बराबर जैसे ही ये हो जाएगा तो फिर एलिप्स नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? तो एक दूसरी शेप बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली एलिप्स तब बनेगा जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम और अल्फा से ज्यादा हो। ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं तीसरा केस, ठीक है, कि बीटा की वैल्यू अगर अल्फा के बराबर, यानी कि ये जो जनरेटर जो एंगल बना रहा है उस जनरेटर के पैरेलल में ही अगर हमारा प्लेन जो है इसे इंटरसेक्ट करे, तब क्या होगा? देखो तब क्या होगा? यू इंटरसेक्ट करेगा, राइट? तो बेसिकली ये क्या करेगा? ये यूं चला जाएगा, ये नीचे का जो सिर्फ एक तरफ का हिस्सा है उसको यूं कट कर जाएगा और वहां पे हमें कैसा शेप मिलेगा? वहां हमें मिलेगा एक पैराबोला। बिल्कुल, पैराबोला से याद आया, क्या हमने पैराबोला कहीं पढ़ रखा है? बिल्कुल पढ़ रखा है। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, वहां हम बात करते हैं पैराबोला। कोई भी एक बॉल है, उसको मैंने थ्रो किया, क्या होता है? बेस्ड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी वो बॉल एक हाइट तक जाती है, उसके बाद वो एक डिस्टेंस पे जाके गिर जाती है। तो ये जो कर्व है दैट इज पैराबोला, एग्जैक्टली। ठीक है, तो यानी कि पैराबोला यहां पर हमें कब मिलेगा? जब बीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो। ये भी क्लियर हो गया। अब चौथा केस, मान लो कि जो बीटा की वैल्यू है वो अल्फा से भी कम हो गई। अब क्या होगा? देखो फिर से ध्यान से, ये है मेरा कोण। अब जो बीटा की वैल्यू है ना, वो जो ये एंगल बना रही थी अल्फा, उससे भी कम हो गई, मतलब कि वो कुछ यूं कट करेगी। अब जब कट करेगी तो कुछ अलग होगा। अभी तक जो तीनों सिनेरियोस थे उसमें हम क्या देख रहे थे कि अगर इधर से प्लेन आ रही थी ना तो वो सिर्फ एक ही नैप को इंपैक्ट कर रही थी, राइट? जैसे सर्कल बन रहा था तो इसको यूं कट कर दिया, तो ऊपर वाला जो नैप है ना दैट वाज अनअफेक्टेड, सिर्फ नीचे वाला नैप को इसने कट कर दिया। जब एलिप्स बना तब भी ऐसे ही था, जब पैराबोला बना तब भी ऐसे ही था। बट अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों को ही इंपैक्ट कर रहा है, मतलब जैसे ही ये अल्फा से कम हो जा रहा है एंगल, तो जो मेरा प्लेन है वो उसे यूं कट कर रहा है, तो ऊपर भी कट हो रहा है, नीचे भी कट हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप इसे देखो ध्यान से तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि
दो पैराबोला बन गए, ऊपर भी एक पैराबोला नीचे भी एक पैराबोला। हालांकि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैराबोला नहीं है, दिस इज कंप्लीटली अ डिफरेंट कर्व जिसे हम कहते हैं हाइपरबोला। थोड़ा सा पैराबोला दिखता है इसलिए शायद नाम भी थोड़ा बोला बोला सिमिलर है, बट दिस इज हाइपरबोला। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ बीटा, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द एंगल विथ विच द प्लेन इंटरसेक्ट्स द कोन, हमें अलग अलग शेप्स मिलती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सर्कल से। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स सच दैट हर एक पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट है। मतलब कई बार कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है जहां से इन सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है दैट इज सेम। ठीक है, अब सर्कल तो आप सबको पता ही है, तो आप समझ ही गए हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस यानी कि सेंटर सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को ले लो सबका डिस्टेंस बराबर है, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या बताता है? इक्वेशन ये बताता है कि जो भी पॉइंट उस सर्कल में लाई करता है वो सारे पॉइंट इक्वेशन ऑफ द सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। हमने स्ट्रेट लाइंस का ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा था कि जो पॉइंट्स उसमें लाई करते हैं, उस कर्व में लाई करते हैं, उन्हें एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए भाई कि मैं सर्कल पे लाई करता हूँ और मैं सर्कल पे नहीं लाई करता हूँ। तो जो भी पॉइंट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सर्कल में लाई करते हैं, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो पॉइंट्स सर्कल पे लाई नहीं करते हैं। राइट, अब चूंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम हर चीज को कोऑर्डिनेट्स के टर्म में बात करेंगे। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है। ठीक है, डेरिवेशंस की ओर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसे यूज कैसे करते हैं उसे समझेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है? अगर हम मान लेते हैं कि सर्कल का सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है h, k, तो x और y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मान लो सर्कल के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट एज्यूम करते हैं p जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस सर्कल के इस कॉन्सेप्ट में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5 एंड whose समझ में आया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट? बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया? बोल सकते हो भाई, बोल ही नहीं रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? यस सर। आप कि कोनिक सेक्शन में हम 3 फिगर पढ़ेंगे, सर्कल, कोन, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, और ये कैसे जनरेट होते हैं ये भी आपने समझ लिया। तो इसमें अब जो सबसे पहला चीज है वो है सर्किल। सर्किल उसने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है और थोड़ा सा मैं बता दूंगा, और कैसे इसको सॉल्व करने के क्वेश्चंस वो बताता हूं मैं आपको। देखो, सर्किल में मेन चीज क्या होता है? एक सेंटर होता है। एक चीज और समझ लें आप कि आपने जो 10th में पढ़ा था सर्किल और जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट चीज पढ़ रहे हैं। 10th में जो आपने पढ़ा था वो एरिया वगैरह निकालना पड़ा था, लेकिन यहाँ हम एरिया वगैरह कुछ नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि सर्किल की इक्वेशन क्या है ये और कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो कोई भी सर्किल होगा तो उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, उसका जो सेंटर है, मान लेते हैं जो सी है वो, और हमको एक पॉइंट सर्किल के ऊपर, मान लेते हैं एक पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, एक इसके कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। अच्छा, सेंटर जो है वो बाय द वे मैंने मान लिया इसका h और k है ना, और 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए सर्किल के बारे में, पहला सेंटर और दूसरा रेडियस। अगर मान लो सेंटर मैंने ले लिया, इसका जो सेंटर है वो h और k है, और सर्किल की जो रेडियस है वो है r, तो इस सर्किल की जो इक्वेशन है वो बहुत सिंपल है। मान लेते हैं इसके ऊपर कोई आर्बिट्री पॉइंट है x, y, तो ये हो जाएगा x - h होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस y - k होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू ये CD जो होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, रेडियस है इसकी r, तो हो जाएगा वो r स्क्वायर। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई सर्किल की। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम हमेशा याद रखेंगे, x - h होल स्क्वायर, y - k होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, वेयर h एंड k, ये तो हो गया उसका सेंटर और r हो गई उसकी रेडियस।
ये हमको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, है ना। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस निकल सकती है क्वेश्चंस में। कंडीशंस क्या होती हैं? मान लो कि ये सर्किल है, ये सर्किल जो है इसका सेंटर ओरिजिन पर है, ठीक है ना। सेंटर एट ओरिजिन अगर हुआ, ओरिजिन का मतलब 0 0 हो गया, तो ऑब्वियसली जो हमारा h और k की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारा जो फॉर्मूला है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यानी कि अगर कोई सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है तो सीधा सीधा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अब इसमें बहुत अलग अलग कंडीशन भी कभी कभी आ जाती है। मान लो a circle is touching the coordinate axis, if circle ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं, is touching कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस समझते हो? मतलब दोनों एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है ना। अब देखो खुद ही यहाँ पे हमको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी और इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। मान लेते हैं ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है और सर्किल है वो ऐसे टच कर रहा है दोनों एक्सिस को, तो आपको मालूम है, मान लेते हैं ये उसका सेंटर है, ठीक है ना। और अगर यहाँ सेंटर से मैं कोई भी लाइन इधर ड्रॉप करूं या इधर ड्रॉप करूं तो ये किसके इक्वल आएगी? इसकी रेडियस के इक्वल आएगी कि नहीं? यस और नो? अकॉर्डिंग टू फिगर, है ना। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो भी रेडियस होगी। और मान लेते हैं कि इस सर्किल की जो रेडियस है वो है, मान लेते हैं r, ठीक। तो ये इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया? r, r आ जाएगा कि नहीं? और रेडियस तो इसकी r है ही है। तो इस सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस आर होल स्क्वायर y प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा देखो, है ना। इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें आप एक्सरसाइज निकालें, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है फर्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 241, है ना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इसमें केवल हमको इक्वेशन बतानी है। तो देखो मान लो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट। इसमें सेंटर दे रखा है हमको 0,2 और रेडियस जो दे रखा है वो दे रखा है 2। तो इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस, इसको खोल देंगे, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। 4 से भी ये 4 कट गया तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी सर्किल की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। This is the required equation of the circle. समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में सबको? एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, then type OK. तो इसमें बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर दे रखा है हमको, सेंटर इज गिवन -a, -b एंड रेडियस इज गिवन √a² - b²। ये रेडियस है।
तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फॉर्मूला वही है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। हमारे पास सारी चीजें h और k की वैल्यू भी है और रेडियस भी दे रखी है हमको, तो हम सीधा सीधा यहाँ रखेंगे तो आएगा x प्लस ए होल स्क्वायर y प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस है हमारी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस इसको खोल दो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b/, और इधर जो कि रूट लगा है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप देखेंगे कि दोनों साइड में ए स्क्वायर अवेलेबल है, तो हम यहाँ से ए स्क्वायर काट सकते हैं, ये तो कट गया ए स्क्वायर, और बाकी इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और वाई स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b/0, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2b/0। ये जो है ना आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अब इसमें आगे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। इसमें हमको इक्वेशन दे रखी है और सेंटर और रेडियस हमको बताना है, आपसे पूछा गया है। तो इसके दो तरीके हैं बताने के, कि जो हमारी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दें और कंपेयर कर दें। जैसे 6th क्वेश्चन में देखो आप, ये दे रखा है x प्लस 5 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इसको आप स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करो। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है सर्किल की, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो सेंटर होता है h के, तो सेंटर तो आ गया मेरा, यहाँ से h और k की जगह कितना आ जाएगा, -5 और 3 सेंटर आ गया। और रेडियस कितनी लग रही है, रेडियस आ जाएगी हमारी 6 का स्क्वायर बन जाएगा वो, तो 6 हो गई, तो रेडियस 6 हो गई, सेंटर हो गया। समझ में आया ये? एक मेथड तो ये, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमको स्क्वायर बना के दे रखे हैं, इसलिए हमें कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिंपली हमको कंपेयर करना है और आंसर लिखना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्क्वायर नहीं दे रखे हो, जैसे 7th क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दे रखा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब इसमें स्क्वायर नहीं दे रखे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम इसमें खुद अपने से होल स्क्वायर बनाएंगे और उसके लिए x वाले टर्म एक तरफ लिख लेंगे, y वाले टर्म एक तरफ लिख देंगे। देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को मैंने एक साथ लिख लिया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y ये लिख लिया, और ये 45 को भी मैं दूसरी तरफ ले गया। अब इसमें ध्यान रखना बस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जो x वाला टर्म है इसका कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का आधा कितना होगा, होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें ऐसे करना पड़ता है ना, 4 का हाफ कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर जोड़ दो इसमें, यानी +4 में इधर जोड़ दूंगा, और राइट हैंड साइड में भी मैं जितना इधर जोड़ूंगा उतना इधर जोड़ दूंगा, +4 मैंने इधर भी जोड़ दिया। ऐसे ही y का होल स्क्वायर बनाने के लिए y स्क्वायर माइनस 8y
ये जो y वाला टर्म है इसका कोफिशिएंट कितना है 8, 8 का आधा कर लो कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर निकालेंगे आएगा 16, तो मैं 16 इधर जोड़ दूंगा और 16 ही राइट हैंड साइड में भी जोड़ दूंगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये किसका होल स्क्वायर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। फिर वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, ये किसका होल स्क्वायर है, ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर है। और उधर हो जाएगा 16 और 4 20 और ये 65 हो जाएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया, y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया और इधर आ गया 65। अब इसको मैं स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करूंगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 65 का होल स्क्वायर बना दिया। तो इसका सेंटर जो है वो अब हमें समझ में आ जाएगा, सेंटर कितना होगा 2,4 और रेडियस कितनी होगी अंडर रूट 65। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? अरे बात समझ में आई कि नहीं? बोल। यस सर। यस सर। हाँ अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर 8 वाला है ना, निकाल के बताओ जरा, सेम इसी टाइप का है। सर डन। हो गया? कितना है बताओ जरा। सर सेंटर आ रहा है सर 4,-5 एंड सर रेडियस आ रहा है रूट ओवर 53। ओके, यू कैन चेक योर आंसर आल्सो। सर सही है। सही है, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, बाकी बच्चों ने किया कि नहीं? यस सर। हो गया ना सबका? अब देखो 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कभी भी ध्यान रखना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो टर्म्स हैं उनके साथ में कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो हमें 2 से डिवाइड कर देंगे इनको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0। अब मैंने जैसे बताया था होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म एक साथ लिखूंगा और वाई स्क्वायर के टर्म अलग कर दूंगा। तो देखो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 1/2 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा बता सकता है कोई? 1/4 होगा कि नहीं?
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी 1/4 कर दिया मैंने, तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे तो सेंटर जो होगा वो आ जाएगा 1/2, 0 और जो रेडियस है, रेडियस आ जाएगी 1/2। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. तो अब आप इसके क्वेश्चन थोड़ा कर सकते हैं। हमने 9 तक करा दिए, बाकी की ये 5-6 क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना। अगर आपसे नहीं बनेंगे तो फिर यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के टॉपिक में कोई चीज डाउट रह गया हो तो पूछ लो आप। कोई भी कहीं से भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो सर्किल अच्छे से समझ में आ गया? If everything is clear, then type C. Clear? Okay. Now we shall have Shanti Path. शांति शांति शांति। साई राम। Thank you, sir. Madam, sir. ओके, Madam, sir. साई राम।